کچھ حدیثیں میں آپ کو سنا دوں حرفن تاکہ مزید اس پہ اور تسلی ہو جائے۔ سب سے پہلی حدیث میں آپ کو سناؤں حضرت انس ابن مالک کا، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5858 ہے۔ اچھا، جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کو اس حدیث کا اسکین پیج چاہیے ہوگا، آپ ای میل کر دیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ پی ڈی ایف پہنچ جائے گا، اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو نیچے بلنک کرے گا ای میل آئی ڈی، آپ اس میں ای میل کیجئے، انشاءاللہ آپ تک یہ پی ڈی ایف کی شکل میں پہنچ جائے گا، اور کتابوں کے فوٹو کاپی کے ساتھ کہ کس کتاب سے کہاں بات سے تھی۔ تو سب سے پہلی حدیث مسلم کی کتاب الفضائل ہے، باب ہے فضیلت انبیاء، اس کا سب باب ہے فضیلت موسیٰ۔ مسلم کی جو کتاب الفضائل ہے، فضائل موسیٰ کا بیان چل رہا ہے۔ فضائل موسیٰ کے بیان میں حدیث آ رہی ہے۔ اب وہ حدیث یہ آ رہی ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کے سفر اسراء میں جب جا رہا تھا، میں اوپر سے جب گزر رہا تھا، کہاں سے گزر رہا تھا؟ اوپر سے جب گزر رہا تھا تو میں نے موسیٰ کو اس کے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ چھپی چھپی حدیثیں اب نکلنا شروع ہو گئی۔ میں نے موسیٰ کو کیا دیکھا؟ اس کے قبر سے ان کے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے۔ اچھا، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو قبر میں روح آئی ہے اور نماز پڑھ لیا، یہ وارسی نماز نہیں پڑھ رہے تھے کہ بس سوچا اور نماز پڑھ لیا ہے۔ نماز کہتے ہیں دو چیز کا مل جانے کو، جسد اور روح کا ملنے کو ہی نماز کہا جاتا ہے۔ خالی روح نماز نہیں پڑھتی ہے، اور مردہ جسم بھی نماز، مردہ جسم کا نماز پڑھا جاتا ہے، مردہ جسم نماز نہیں پڑھتا۔ تو گویا کہ جب قبر میں موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کا روح بھی آپ کے پاس تھا اور آپ کا جسم بھی آپ کے پاس تھا۔ تو جب موسیٰ اپنے روح اور اپنے جسم کے ساتھ اپنے قبر میں موجود ہو سکتا ہے تو مدینے میں سویا ہوا آمنہ کا لال کیوں نہیں موجود ہوگا؟ تو ایک حدیث تو یہاں سے ہو گئی۔ دوسری حدیث امام نسائی سنن الکبریٰ کتاب صلاۃ علی موسیٰ پہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کا حدیث نمبر 1636 ہے۔ 1630 سے 1636 پہ چل رہا ہے۔ اسی طرح امام نسائی نے اس کو اپنی ایک اور کتاب سنن الکبریٰ کے اندر ذکر کیا، صلاۃ علی موسیٰ باللیل، اور اس کا حدیث نمبر 1330 ہے۔ اسکین کاپی چاہیے ہوگا، انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور وہ یہ حدیث کہ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سفر معراج سے جب اوپر جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیکھا کہ وہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس موضوع کے اوپر میں ایک محدث نے پوری کتاب لکھ ڈالی ہے۔ اس موضوع پہ ایک محدث نے کیا کیا؟ پورا کتاب لکھ ڈالا، اور ان کا نام امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بیہقی نے کتاب لکھا، اس کتاب کا نام ہی ہے حیات الانبیاء، انبیاء کی حیات۔ اور حیات الانبیاء کے پیج نمبر 3 پہ بھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء احیاء فی القبور ہم ویصلون، کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب یہاں صرف موسیٰ کا ذکر نہیں ہے، انبیاء اپنے قبروں میں کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر کہتا ہوں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہمیں پتہ نہیں کس طرح۔ اب کوئی اس پہ اپنا لکڑی سیدھا نہیں کرے، اس طرح اور اس طرح نہ کرے، جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا آنکھ بند کرو، مان لو۔ عقل کا دخل مت لگانا شروع کرو، ورنہ عقل یہی کہتی ہے کہ ریا پیچھے سے خارج ہوئی تو دھونا تو پیچھے چاہیے، پھر منہ کیوں دھوتے ہو وضو میں؟ ہوا جہاں سے نکلا اس کو دھو۔ تو اسلام میں عقل کا کوئی دخل نہیں، اسلام میں اتنا ہی ہے جتنا اللہ، اس کے رسول، اس کے صحابہ اور اس کے اجماع نے ہمیں سمجھا دیا، اتنا ہی چلنا ہے۔ اچھا، اس حدیث کو امام ابی یعلا رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بزرگ محدث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمان کے، امام ابو یعلا اپنی حدیث کی کتاب مسند ابو یعلا المؤصلی کے اندر جلد نمبر 6 میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 3425 میں یہ حدیث ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ 3425 جلد نمبر 6 مسند ابی یعلا، اگر اسکین پیج چاہیے حاضر۔ اچھا، گھبرانے کی بات نہیں ہے،
इमाम हैशमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको अपनी किताब में ज़िक्र किया। कौन सी हदीस को? इमाम अबू याला अल-मूसली की किताब को। और इमाम अबू याला अल-मूसली अपनी इमाम हैशमी रहमतुल्लाह अलैह मुस्नद अबू याला अल-मूसली जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 3425 वाली हदीस को अपनी किताब मजमुअ अज़-ज़वाइद जिल्द नंबर 8 पेज नंबर 387 और हदीस नंबर 13812 में ज़िक्र करते हुए कहते हैं हाज़ा हदीसुन सिक़ा। इस हदीस, ये हदीस सिक़ा है, इसके तमाम रावी सिक़ा है। अच्छा, फिर इमाम अबू हैशमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मजमुअ अज़-ज़वाइद किताब फ़ीही ज़िक्र अल-अनबिया किताब नंबर 35 बाब ज़िक्र अल-अनबिया जिल्द नंबर 8 पेज नंबर 276 हदीस नंबर 13812 में भी इसको ज़िक्र करते हैं। अब थोड़ी सी ये बात हाई लेवल पे चली गई। अब कौन जाए मजमुअ अज़-ज़वाइद खोज के देखने कि इमाम हैशमी ने क्या कहा, कहाँ से लाए मुस्नद अबू याला अल-मूसली, कहाँ जाके देखे हम हदीस नंबर 3425। तो घबराने की क्या ज़रूरत है, एक एंटीवेनम हमारे पास भी है। इसी हदीस को अल्लामा अलबानी ने अपनी किताब सिलसिला हदीस सहिहा के अंदर भी ज़िक्र किया। आज के डेट में अगर अल्लामा अलबानी की किताब किसी अपने आप को अहले हदीस बोलने वाले के घर में मौजूद नहीं है तो वो पक्का अहले हदीस नहीं है, क्योंकि लड़ाई इसी पे करता है। अल्लामा अलबानी सही बोले, ज़ुबैर अली सही बोले, अल्लामा अलबानी सही बोले, ज़ुबैर अली सही बोले। चलो, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस को अपनी किताब में लाते हैं, किसमें? सिलसिला हदीस सहिहा। 2 किताब लिखी, सिलसिला हदीस ज़ईफ़, सिलसिला हदीस ज़ोफ़ा और सिलसिला हदीस सहिहा। उसके जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 187 हदीस नंबर 621 में लिखने के बाद कहते हैं हदीसुन सही, कि अल्लाह के नबी की हदीस के अनबिया अपने कब्रों में ज़िंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। ये क्या हो गई? अच्छा, एक पार्टी हो सकता है नाराज़ हो जाए। देखो, बरेली तो ये बात मानते हैं कि अनबिया ज़िंदा होते हैं, तो एक देवबंदी पार्टी बचा। अहले हदीस के घर की शहादत हमने दे दी कि अहले हदीस के बुज़ुर्गों ने भी लिखा कि क्या है, अनबिया अपने कब्रों में ज़िंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो मेरा एक भाई बच गया देवबंदी, तो इनके घर की भी किताब का हवाला दे देना चाहिए। हालांकि मैंने इस पेपर में लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, उनकी जो किताब है अल-मुफन्नद अलल मुहन्नद अक़ाइद उलमाए देवबंद, जो अक़ीदा की किताब है उनके यहाँ, अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद अक़ाइद उलमाए देवबंद, उनके अंदर ये सवाल भी दर्ज है कि क्या अनबिया अपने कब्रों में ज़िंदा होते हैं। अक़ाइद उलमाए देवबंद की किताब अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद के अंदर भी है कि अनबिया अपने कब्रों में ज़िंदा होते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। तो हो गया, अपना पूरा ग्रुप कैप्चर हो गया। ठीक है, राज़ियों का तो बात ही नहीं, उनके यहाँ तो कोई मरता ही नहीं, तो ज़िंदा कहाँ से होगा। इसी हदीस को जो मैंने आपको मुस्नद अबू याला अल-मूसली का सुनाया, इमाम बैहक़ी का सुनाया, इमाम हैशमी का सुनाया, इसी हदीस को एक और मुहद्दिस ने सही कहा, इमाम हाफिज़ हजर हैशमी, इमाम हाफिज़ हजर अस्क़लानी। अरे यार, 2 मुहद्दिस है, हाफिज़ हजर हैशमी भी है, हाफिज़ हजर अस्क़लानी भी है। दोनों का दोनों हाफिज़ अहले सुन्नत भी है, दोनों के दोनों मुहद्दिस भी है, दोनों के दोनों शाफ़ी हैं। हाफिज़ हजर हैशमी ने किताब लिखा, उन्होंने शियों के रद में किताब लिखा सवाइकुल मुहर्रिक़ा, इस वजह से हाफिज़ हजर हैशमी है वो। एक है हाफिज़ हजर अस्क़लानी, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, तारीख़ुल इस्लाम भी लिखा, फ़तहुल बारी भी लिखी। ठीक है, अबुल फ़ज़ल सिहाबुद्दीन अहमद बिन मोहम्मद अल-क़न्नानी अश-शाफ़ी हजर अस्क़लानी इनका नाम था, और इनकी एक बहुत मारकतुल आरा किताब है, इसका नाम है बुलुगुल मुराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, फ़िक़ह के बारे में किताब है। तो ये वो हाफिज़ हजर अस्क़लानी जिन्होंने फ़तहुल बारी लिखा। हाफिज़ हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी में लिखते हैं कि इमाम बैहक़ी ने एक पूरी की पूरी किताब तश्कील की जिसका नाम हयातुल अनबिया है, और उसके अंदर में ज़िक्र किया जनाब यहया का कि यहया भी अपने कब्र में ज़िंदा और नमाज़ें पढ़ते थे, और कहा कि ये रिवायत सही है। अच्छा, एक और मुहद्दिस ने इस हदीस को सही कहा, उसका नाम है इमाम इब्न कसीर। तो इमाम इब्न कसीर ने भी इस हदीस को सही कहा, और इसको लिख रहे हैं हाफिज़ हजर अस्क़लानी अपनी फ़तहुल बारी में, और कहते हैं कि इसके तमाम रावी क्या है, सिक़ा है। अब इस हदीस को एक और मुहद्दिस ने सही कहा,
उसका नाम इमाम अहमद बिन हम्बल। इस हदीस को एक और मुहद्दिस ने सही कहा, उसका नाम इमाम हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह। इस हदीस को एक और मुहद्दिस ने सही कहा, उनका नाम है इमाम अबी ज़ैद अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इन सारे मुहद्दिस ने कहा कि अनबिया अपने कब्रों में ज़िंदा होते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं। ये रिवायत क्या है? सही है। तीसरी हदीस ये है जो अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अब वो ये है कि अल्लाह ने अनबिया पर ज़मीन पर हराम कर दिया है। आपको हदीस नंबर सुना दूँ पहले, सुनन इब्न माजा की हदीस है और पहली जिल्द की हदीस है 1627। स्कैन कॉपी चाहिए ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, इब्न माजा की खुसूसियत आपको ये बताता चलूँ कि जिस हदीस पर इमाम इब्न माजा को शक होता था उसके नीचे अपना कोट लिख देते थे। ये इमाम अबू दाऊद भी करते थे। हर मुहद्दिस किसी हदीस को ज़ईफ़ समझता था ना तो वो उसके नीचे एक अपना कमेंट कर देता था। तो इब्न माजा हदीस नंबर 1627 और उसमें अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला से ये है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया क्या? अनबिया के जिस्मों को खाए। इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही कहा है, सही सुनन इब्न माजा। इस हदीस को अल्लामा ज़ुबैर अली ज़ई जो मुहद्दिस हैं अहल हदीस जमात में बड़े, जो इंतकाल कर चुके, अल्लाह उनके दर्जे को बुलंद करे, उन्होंने ज़ईफ़ कहा, ठीक है। उसमें एक रावी पे कलाम करते हुए उन्होंने कहा कि ये रावी जो है ये रावी ठीक नहीं है, और इब्न रजब हम्बली ने कहा है कि ये रावी से ये हदीस साबित नहीं है, लिहाजा ज़ईफ़ है। लेकिन तहकीक करने के बाद जब मैंने इस हदीस पे तहकीक की और मैंने तहकीक निकाल कर एक जगह भेजा तो आप यकीन जाने कि वो तहकीक सही साबित हो गई कि ये हदीस साबित है, ये हदीस सही सनद के साथ साबित है। और बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, अब वो ये है कि जलालुल अफ़हाम के अंदर में अल्लामा क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस को ज़िक्र करके कहा कि हदीस सही है। कौन सी? कि अनबिया अपने कब्रों में ज़िंदा होते हैं, सॉरी, अनबिया की हड्डियों को ज़मीन नहीं खाती, यानी अनबिया की हड्डियाँ जो है ज़मीन को अलाउ नहीं है कि वो अनबिया की हड्डियाँ खा ले। तो अब अनबिया कब्र में लेट के करेंगे क्या? इसके बारे में अबू दाऊद हदीस में लाते हैं, जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 2036 सनद सही के साथ। अब वो ये है कि अल्लाह ताला मेरी रूह को लौटा देता है और मैं सलाम को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह मेरी रूह को लौटा देता है और मैं सलाम सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। अब फिर से सुन लीजिए कि किस तरह सुनते हैं, किस तरह जवाब देते हैं। वलाकिन तशऊरून, हम नहीं जानते, हमें इतना मालूम है कि वो सुनते हैं और जवाब देते हैं। तो अब सवाल ये होगा कि पूरी दुनिया तो अल्लाह के नबी पे दरूद पढ़ रही है ना हर वक्त, तो ये एक खेल नहीं हो जाएगा, यूँ रूह उठाया यूँ डाला, यूँ उठाया यूँ डाला, यूँ उठाया यूँ डाला, तो एक अनबिया के जिस्म के साथ मजाक हो जाएगा ना। तो अब इसके बारे में अल हवाई लिल फतावी एक किताब है, अल हवाई लिल फतावी, जिल्द नंबर 2 पेज 271-272, उसके अंदर जिल्द नंबर 2 पेज 271 और 272, उसके अंदर हाफिज़ स्यूती रहमतुल्लाह अलैह, जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस में जो रद्दा है ना, लौटाना, ये अलग दवाम है। अलग दवाम यानी हमेशगी के लिए होता है। अलग दवाम जो है हमेशगी के लिए यूज़ की जाती है, ना कि टेम्पररी के लिए। यानी अल्लाह मेरी रूह को लौटा देता है, मैं जवाब देता हूँ। उस मुराद कि अल्लाह ने मेरे रूह को लौटा दिया है कि क़यामत तक उम्मत सलाम करते रहना, जवाब देता रहा। समझे? क्योंकि हर वक्त तो सलाम हो रहा ना, तो हर वक्त रूह को लाना निकालना ये ठीक नहीं है। रूह दे के छोड़ दिया, आप जवाब देते रहिए, जब सारे मर जाएंगे अल्लाह आपको अपने पास बुला लेगा। लेकिन किस सूरत में जवाब देते हैं, किस सूरत में जवाब देते हैं, हम नहीं जानते। अच्छा, इसी हदीस को, अबू दाऊद वाली हदीस को एक और इमाम ने भी जिक्र किया है। अबू दाऊद वाली हदीस को एक और इमाम ने भी जिक्र किया। फिर से सुन लें, अबू दाऊद वाली हदीस को एक और इमाम ने भी जिक्र किया है, और उस इमाम का नाम है
नबवी रहमतुल्लाह अलैह और रियाजुस सालिहीन में ज़िक्र किया है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने किस में ज़िक्र किया है? रियाजुस सालिहीन में। और हदीस नंबर है 1402। अहले हदीस के बुज़ुर्ग के एक और आलिम है जिनका नाम है हाफिज़ सलाहुद्दीन, ठीक है, यूसुफ, हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ, उन्होंने इसकी तशरीह भी की है। अच्छा, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद की हदीस को इमाम नबवी ने अपनी किताब के अंदर भी लाया है, ठीक है ना, अपनी किताब में भी लाया है। और हदीस नंबर 1402। कितना नंबर हदीस है? 1402। कितना नंबर है जी? 1402। साबिक़ा रावी यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे कब्र को ईद मत बनाओ और मुझ पर दरूद पढ़ो, इसलिए कि तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हारा दरूद मुझे पहुँचाया जाता है। अबू दाऊद सनद सही, ठीक है। अब रियाजुस सालिहीन तो आपके पास होगा, कैमरामैन ज़रा सा इसको जूम करके ले आइए, ठीक है कि, और ये भी फ़ोटो खींच ही लीजिए, जब आप खींच रहे हैं तो ये भी दिखा ही दीजिएगा, ठीक है। रियाजुस सालिहीन हदीस नंबर 1402 कि तुम कहीं भी रहो मुझ पर दरूद पढ़ो तो मुझे दरूद पहुंचाया जाता है। सूरत अल्लाह जानता है कैसे पहुंचाया जाता है। इख्तिसार कर रहा हूं और आखिरी हदीस सुनाकर बात अपनी मुकम्मल कर दूं। हज़रत ये हदीस जो अबू दरदा वाली थी कि अनबिया के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, ये हदीस को इमाम अबू दाऊद ने 1526 नंबर पे भी लिखा है। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1526। और औस इब्ने औस, ठीक है, औस इब्ने औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सनद पर यह हदीस बयान की। अच्छा, इस हदीस को किस किस ने सही कहा? इमाम नबवी ने अपनी किताब अल अस्कार के अंदर सही कहा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर यानी पेज नंबर 131 132, हदीस नंबर 302। स्कैन कॉपी चाहिए हमसे ले लीजिए। इमाम हजर अस्कलानी फतुल बारी जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 562 के अंदर इस हदीस को सही कहा, स्कैन कॉपी चाहिए हमसे ले लीजिए। इमाम तबरानी ने मौजमुल औसत जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 97 हदीस नंबर 4770 में सही कहा। इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 216 217 हदीस नंबर 589 के अंदर सही कहा। इमाम इब्न अबी शैबा ने मुसन्नफ़ किताबुस सलात किताब नंबर 795 जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 40 हदीस नंबर 8789 के अंदर सही कहा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब अल मुस्नद जिल्द नंबर 26 सफ़ा 84 हदीस नंबर 1662 के अंदर इस हदीस को 16162 में इस हदीस को सही कहा। इमाम बज़्ज़ार ने मुस्नद अल बज़्ज़ार हदीस नंबर 3485 में सही कहा। इमाम हिब्बान ने किताब और रक़ाइक़ हदीस नंबर 910 में इस हदीस को सही कहा। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 1733 1734 में लाकर इसको जिल्द नंबर 3 के अंदर इसको सही कहा। इमाम बैहक़ी ने शोबुल ईमान फ़ज़ाइल सलाह अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नंबर 2769 में इस हदीस को सही कहा। इमाम बैहक़ी ने सुननुल कबरा किताबुल जुमा हदीस नंबर 5993 में इस हदीस को सही कहा। इमाम दारामी ने सुनन दारामी जिल्द नंबर 1 किताब फ़ज़ाइल यौमुल जुमा हदीस नंबर 1572 में इसको सही कहा। इमाम इब्न माजा ने हदीस नंबर 1085 में सही कहा। हाफिज़ इब्न कसीर ने तफसीर कुरान अज़ीम जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 479 के अंदर सूरतुल अहज़ाब की आयत की तफसीर इन्नल्लाह व मलाइकतुहु वाली तफसीर के अंदर हदीस को लाकर सही कहा। और इमाम निसाई ने अपनी किताब सुनन निसाई किताबुस सलात हदीस नंबर 1373 में लाकर इस हदीस को सही कहा। यानी 15 मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को सही कहा। इस दौर में इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा, अल्लामा क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा, और भी बुज़ुर्ग उलमा हैं, अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा। गोया कि ये बात वाज़े हो गई और ये अक़ीदे में आ गई कि अनबिया अपने कब्रों में ज़िंदा होते हैं, हाल हमसे छुपा है, गैब का मामला है किस तरह ज़िंदा होते हैं। उन पे दरूद पढ़ने वाला को दरूद पढ़ता है तो अनबिया उनके दरूद को सुनते हैं। साबिका अनबिया अपने कब्रों में नमाज़ पढ़ते थे, हमारे रसूल अपने कब्र में रहते हुए दरूद सुनते हैं और हमें जवाब भी देते हैं। अच्छा, एक चोर दरवाज़ा बंद कर दूँ आखिरी में, और वो ये कि कोई ये कह सकता चलो सुनते हैं तो मतलब कि रोज़ा के पास जाके दरूद पढ़ने से वो दरूद सुनेंगे।
روضہ کے پاس جا کے درود پڑھنے سے وہ درود سنیں گے. تو یہ ان کا عقلی بات ہے. جب ایسا کوئی آپ کو عقل لگا کے بات کرے نا تو آپ بھی اس کو عقل لگا کے جواب دو. اب وہ یہ کہو کہ انہوں نے بلال کے پیروں کی آہٹ کو جنت میں سنا تھا, انہوں نے بلال کے پیروں کی آہٹ کو جنت میں سنا تھا, تو جو جنت کی آوازیں سن سکتا ہو وہ دنیا میں رہ کے دنیا کے درود بھی سن سکتا ہے. اس کے گھر پہ جا کے اس کو درود پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں پر بھی موجود ہو اپنے نبی پہ درود پڑھیں. اللہ آپ کے درود کو پہنچاتا ہے, کس ذریعے سے پہنچاتا ہم نہیں جانتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. یہ پرانے بزرگوں کا بھی عقیدہ, سلف و صالحین کا بھی عقیدہ, لیکن کس طرح جواب دیتے ہیں یہ ہم سے مبہم ہے, چھپا ہوا ہے. ہم یہ بات نہیں جانتے کہ کس طرح جواب دیتے ہیں. بس اتنا عقیدہ ضرور ہے کہ انبیاء کی قبر کے اندر میں جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ اس دنیا سے ہزاروں کروڑوں لاکھوں گنا بہتر ہوتی ہے, اور وہ اپنے قبروں میں زندہ درود پڑھ کا جواب دینے والے اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. وما توفیق الا باللہ.